اس لیے اسے بنیادی باتوں کے بارے میں تو خود بھی علم ہے۔ مونچھو والے نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا، گڈ، یہ فارمولہ حاصل کرنے کا کارنامہ تمہارے محکمے کے لیے قابل فخر رہے گا اور حکومت بھی اس سلسلے میں باقاعدہ خراج تحسین پیش کرے گی۔ سر ایڈمن نے کہا تو مونچھو والے کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھرائے۔ بے حد شکریہ جناب، آپ واقعی قدر شناس اور آپ کی قدر شناسی ہی ہمارے لیے خراج تحسین کی حیثیت رکھتی ہے، مونچھو والے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس تعریف کا شکریہ، بہرحال جیسے ہی فارمولہ تمہارے پاس پہنچے تم نے اسے میرے پاس بھجوا دینا ہے، میں انتظار کروں گا، گڈ بائے، سر ایڈمن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ مونچھو والے نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھا اور پھر سامنے کھلی ہوئی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور مونچھو والے نے سر اٹھا کر فون کی طرف دیکھا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس بلیک آکٹوپس، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، باس پرانگل سے B11 آپ سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے اس کی ملٹری سیکرٹری کی مترنم آواز سنائی دی، B11 او کراؤ بات، باس نے چونک کر کہا۔ ہلو B11 بول رہا ہوں پرانگل سے سر۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ وحشت بھری آواز سنائی دی، کیا بات ہے، کیوں براہ راست کال کی ہے، باس نے کرخت لہجے میں کہا۔ سر جس جہاز سے تھامسن اور ڈیسی آ رہے تھے وہ پرانگل ایئرپورٹ سے اڑنے کے 2 منٹ بعد فضا میں کریش ہو گیا ہے، پورا جہاز جل کر سمندر میں گر گیا اور اس کا نہ کوئی مسافر بچا ہے اور نہ کوئی سامان، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے، B11 نے کہا۔ تو باس کا چہرہ یکلحظ جیسے پتھرا سا گیا، کیا کہہ رہی ہو، یہ کیسے ہو گیا، او ویری بیڈ، ریئلی ویری بیڈ۔ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد باس نے یکلحظ پھٹنے والے لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے الفاظ خود بخود پھسل کر اس کے منہ سے نکلتے جا رہے ہوں۔ میری ڈیوٹی پرانگل ایئرپورٹ پر ہے باس، جب کافرستان سے آنے والا جہاز پرانگل پہنچا تو میں وہاں موجود تھا، جہاز نے یہاں کافی دیر رکنا تھا۔ تھامسن اور ڈیسی لاؤنج میں آ گئے، میری ان سے ملاقات ہوئی، تھامسن نے آپ سے کسی محفوظ فون پر بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں انہیں ایک علیحدہ کمرے میں لے گیا، وہاں فون محفوظ تھا، میں واپس لاؤنج میں آ گیا، تھوڑی دیر بعد تھامسن صاحب پھر واپس آ گئے، پھر ہم تینوں نے اکٹھا لنچ کیا۔ اس کے بعد جہاز کی روانگی کا اعلان ہونے لگا تو وہ اٹھ کر خصوصی لاؤنج میں چلے گئے، جبکہ میں باہر آ گیا۔ جہاز روانہ ہو گیا، پھر فوراً ہی اطلاع ملی کہ جہاز فضا میں ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا ہے اور آگ کے شعلے کی صورت میں سمندر میں گر گیا ہے۔ میں فوراً وہاں پہنچا تو وہاں سے ملبہ نکالا جا رہا تھا، ملبہ اور جلی ہوئی لاش ملی ہے، سب کچھ اس طرح جل گیا ہے کہ کوئی لاش پہچانی ہی نہیں جا رہی، پورا سامان مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکا ہے، جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اور اس کا پورا ڈھانچہ اس طرح جل گیا ہے جیسے موم جل کر پگھل کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں، B11 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، تھامسن نے مجھے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ 1.5 گھنٹے بعد یہاں پہنچ جائیں گے۔ ویری بیڈ، ان کے پاس انتہائی قیمتی کاغذات تھے، یہ کاغذات یقیناً ان کے بیگ میں ہوں گے، تو معلوم کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ بیگ جلنے سے بچ گیا ہو۔ تھامسن کی ہمیشہ عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ انتہائی خصوصی طور پر تیار کردہ فائر پروف بیگ رکھتا ہے، باس نے تیز لہجے میں کہا۔ نو سر، ایسا کوئی بیگ نہیں ملا، ایک بیگ ایسا ملا ہے جو اپنی ساخت کے لحاظ سے فائر پروف لگتا ہے، لیکن وہ بھی مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکا ہے، B11 نے جواب دیا۔ ویری بیڈ، بہرحال مزید تلاش کرتے رہو اور اگر کوئی بات ہوئی تو مجھے رپورٹ دینا، باس نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور کریڈل پر پٹھا اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ لیا۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا، پھر اچانک فون کی گھنٹی بجنے پر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس بار اس نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، سیکرٹری دفاع سر ایڈمن آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، بات کراؤ، باس نے ڈھیلے بلکہ انتہائی مستعصی لہجے میں کہا۔ ہلو ایڈمن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایڈمن کی تیز آواز سنائی دی، یہ سر، باس نے جواب دیا۔ اب یہ بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ پرانگل سے کارمن آنے والا جہاز فضا میں کریش ہو گیا ہے، کیا یہ وہی جہاز میں جس میں فارمولہ آ رہا تھا، سر ایڈمن نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یس سر، ابھی پرانگل سے میرے ایجنٹ نے تفصیلی رپورٹ دی ہے، باس نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ایجنٹ کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ فارمولہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ڈاکٹر مارک بھی ہلاک ہو گیا اور اب فارمولہ بھی جل گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، لیکن یہ جہاز کس طرح کریش ہوا، مجھے تو انتہائی گہری سازش لگتی ہے، سر ایڈمن نے کہا۔ سر، آج کل دہشت گردی کی کارروائیاں عام ہو رہی ہیں، یہ بھی یقیناً دہشت گردی کی ہی کارروائی ہوگی، لیکن اس کارروائی کی وجہ سے ہمارا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، باس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہیں یہ جہاز اس فارمولے کی وجہ سے تو نشانہ نہیں بنایا گیا، سر ایڈمن نے کہا۔ او نہیں جناب، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، فارمولے کے بارے میں سوائے ڈیسی اور تھامسن کے کسی کو سرے سے علم ہی نہیں تھا، کافرستان میں بھی کسی نے انہیں مارک نہیں کیا، پرانگل میں بھی میرا ایجنٹ موجود تھا، اس کے سامنے تھامسن نے مجھ سے بات کی، میرے ایجنٹ نے ان کے ساتھ مل کر لنچ کیا، پھر اس کے سامنے ہی تھامسن اور ڈیسی جہاز میں سوار ہوئے اور جہاز ایئرپورٹ سے اڑتے ہوئے 2 منٹ بعد فضا میں کریش ہو کر سمندر میں گر گیا۔ میرا ایجنٹ وہاں پہنچا اور اس نے سب کارروائی چیک کر کے مجھے رپورٹ دی، اس لیے یقیناً یہ ہمارے مسئلے سے ہٹ کر کوئی کارروائی کی گئی ہے، باس نے کہا۔ اوکے، بہرحال اب کیا جا سکتا ہے، یہ معاملہ تو ہمیشہ کے لیے فنش ہو گیا، دوسری طرف سے سر ایڈمن نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ باس نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، پھر میز کی تراز کھول کر اس میں سے شراب کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے اسے منہ سے لگا لیا، پوری بوتل خالی کر کے اس نے ساتھ پڑی ہوئی ٹوکری میں پھینکا اور پھر فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اس نے فون کو ڈائریکٹ کیا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رائل سیلوٹ کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، پارکی بول رہا ہوں، نارمن سے بات کراؤ، مونچھو والے نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یہ سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔
हेलो नार्मन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पार्की बोल रहा हूँ नार्मन, मूंछों वाले ने भारी लहजे में कहा और यस पास नार्मन का लहजा यकलहत इंतहाई मोदबाना हो गया। नार्मन, अभी थोड़ी देर पहले प्रांगल से कार्बन आने वाला जहाज फिजा में क्रैश हुआ है, पार्की ने कहा। और यस सर, मैं टीवी पर इसके बारे में रिपोर्ट देख रहा था। बहुत खौफनाक हादसा हुआ है, सब कुछ तबाह हो गया है। ना ही मुसाफिरों से कोई बचा है और ना ही अमले में से। नार्मन ने कहा। इस जहाज में थॉमसन और डेसी भी सफर कर रहे थे। पार्टी ने कहा। क्या क्या कह रहे हैं आप? ओ वेरी बैड, थॉमसन और डेसी दोनों। ओ वेरी सैड, नार्मन की वहशत भरी आवाज़ सुनाई दी। हाँ, और वो काफिरिस्तान से एक इंतहाई अहम साइंसी फार्मूला अपने साथ लेकर आ रहे थे। प्रांगल से बी इलेवन ने रिपोर्ट दी है कि सब कुछ जल गया है। बहरहाल तुम फौरी तौर पर प्रांगल पहुंचो और वहां जाकर मालूमात हासिल करो कि इस हादसे के पीछे किसका हाथ है, पार्की ने कहा। ये बात तो मैं यहाँ बैठे बैठे मालूम कर सकता हूँ बॉस। प्रांगल का पुलिस चीफ मेरा गहरा दोस्त है, वो मुझे ये बात भी बता देगा जो वो प्रेस में ना देना चाहेगा, नार्मन ने कहा। तो फिर उससे मालूम करो, खास तौर पर ये मालूम करो कि कोई फायर प्रूफ बैग भी नहीं मिला है या नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि थॉमसन हमेशा फायर प्रूफ खसूसी साख्त का बैग अपने पास रखता था और खास तौर पर इंतहाई अहम तरीन कागजात के लिए तो वो लाजमन फायर प्रूफ बैग ही इस्तेमाल करता था और अब इसके पास इंतहाई अहम तरीन कागजात थे, पार्की ने कहा। ठीक है बॉस, ये बात भी आसानी से मालूम हो जाएगी, नार्मन ने जवाब दिया। ओके, मालूमात करके मुझे फ़ोन दो, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, पार्की ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी। चूँकि फ़ोन का बटन प्रेस था इसलिए फ़ोन का राब्ता सेक्रेटरी से नहीं था बल्कि कॉल अब बराह रास्त आ रही थी। पार्की ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, पार्की ने कहा। नार्मन बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से नार्मन की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? पार्की ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। बॉस, एक ऐसा बैग मिला है जो अपने साथ के लिहाज से फायर प्रूफ लगता है, लेकिन वो भी जलकर राख हो चुका है। आग इस शिद्दत की थी कि जहाज का फुलादी ढांचा भी मोम की तरह पिघल गया है। और बास पुलिस कमिश्नर से मालूम हुआ है कि एक आदमी मशकूक को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इस मशकूक आदमी ने बताया है कि ये कार्रवाई बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक थंडर ने की है और इस आदमी ने अभी मजीद तफसील ना बताई थी कि उसके अंदर जिस्म में मौजूद बम फट गया और उसके जिस्म के ऊपर हच्चे उड़ गए हैं। इस आदमी की रहायश की भी तलाशी ली गई है। वहाँ से एक कार्ड मिला है जिस पर ब्लैक थंडर के अल्फाज सुर्ख स्याही से लिखे हुए हैं। इसके नीचे एक मीनार बना हुआ है और इस मीनार के नीचे 3X के अल्फाज मौजूद हैं। इससे ये साबित हो गया है कि ये कार्रवाई ब्लैक थंडर की है, नार्मन ने जवाब दिया। खुफिया बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक थंडर, ये कौन सी तंजीम है? मैंने तो कभी इसका नाम तक नहीं सुना, पार्की ने हैरत भरे लहजे में कहा। बास पुलिस ऑफिसर ने भी यही बात की है कि ये नाम पहली बार सामने आया है। प्रांगल के पुलिस कमिश्नर ने इस सिलसिले में मालूमात फरोख्त करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीमों से भी पूछगिछ की है, लेकिन कोई भी इस नाम से वाकिफ नहीं है। शायद ये कोई नई दहशतगर्द तंजीम सामने आई है, नार्मन ने कहा। ऐसा ही होगा। बहरहाल ये बात तो अब तय हो गई है कि फार्मूला भी खत्म हो गया और ये कार्रवाई इस फार्मूले के हसूल की गर्ज से नहीं की गई, पार्की ने मुंह बनाते हुए कहा। यस पास, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके ठीक है, पार्की ने कहा और रिसीवर रखकर उसने मेज पर रखी हुई फाइल बंद करके उसे दराज में रखा और दराज बंद करके वो कुर्सी से उठा और ढीले कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान जैसे ही दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। इमरान साहब, एक बैड न्यूज़ है, ब्लैक ज़ीरो ने सलाम दुआ के बाद वापस बैठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जाहिर है तुम जैसे सख्त मिजाज चीफ के मुंह से गुड न्यूज़ तो निकल ही नहीं सकती। बहरहाल बताओ कि बैड न्यूज़ है क्या? दानिश मंजिल में कोई गड़बड़ हो गई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो फार्मूला जो थॉमसन और डेसी लेकर जा रहे थे वो जलकर राख हो गया है और वो दोनों भी हलाक हो गए हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? ये सब कैसे हुआ? इमरान ने चौंकते हुए लहजे में कहा। आपने काफिरिस्तान एयरपोर्ट से मुझे फ़ोन करके कहा था कि कार्बन में स्पेशल एजेंट्स को ब्रीफ कर दूं कि वो मालूम करें कि फार्मूला किस लेबॉर्ट्री में भेजा जा रहा है। चुनांचे मैंने स्पेशल एजेंट लॉइस को ब्रीफ कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले लॉइस की कॉल आई है कि वो तैयारा जिसमें थॉमसन और डेसी फार्मूले समेत सफ़र कर रहे थे वो प्रांगल एयरपोर्ट से परवास करने के 2 मिनट बाद ही फिजा में क्रैश हो गया और इस कदर खौफनाक आग लगी है कि तमाम मुसाफिर और अमले के आदमी समेत तमाम सामान में मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा कि थॉमसन और डेसी की लाशें मिली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रांगल से ही खिसक गए हों, इमरान ने पूछा। लुइस ने बताया है कि वो दोनों प्रांगल एयरपोर्ट से बाहर नहीं गए और मुसाफिरों की लिस्ट में भी इन दोनों के नाम शामिल हैं और लुइस के मुताबिक जली हुई लाशें भी पूरी हैं, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। इस हादसे के पीछे किसका हाथ है? इमरान ने होंठ बेंचते हुए पूछा। अभी किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। वहाँ की पुलिस का अंदाजा है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई है, क्योंकि इससे 2 रोज़ पहले भी प्रांगण में की इमारत को बम धमाके से उड़ा दिया गया था, वहाँ भी बेतहाशा अफराद हलाक हुए थे, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। उसकी फराख पेशानी पर लकीरें ऊपर आई थी। यस रेडसन एडवर्टाइजिंग कंपनी। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा कारोबारी ही था। प्रिंस बॉडल से बात कराए, मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हेलो प्रिंस बॉडल बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ पाकिस्तान से। इमरान ने कहा, मुझे मेरी सेक्रेटरी ने पहले ही बता दिया है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ से बड़े स्पॉट से लहजे में कहा गया और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसका सुता हुआ चेहरा बेख्तियार नॉर्मल हो गया। उसने ये तो नहीं बताया होगा कि किंग बॉडल ने नई वसीयत लिख दी है और अपनी किंगडम अली इमरान के नाम कर दी है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ले लो किंगडम, मैंने इसका चार्ज तो नहीं डालना। दूसरी तरफ से तीसरा स्पॉट लहजे में जवाब दिया गया।
किंगडम ने गार्थिया भी शामिल है, सोच लो। इमरान ने कहा, क्या क्या बकवास कर रहे हो, खबरदार अगर गार्थिया का नाम तुमने लिया मैं तुम्हें तुम्हारी किंगडम समेत गोली मार दूंगा। दूसरी तरफ से यकराहत फाट पड़ने वाले लहजे में कहा गया, मार दो, इससे क्या फर्क पड़ेगा सिवाय इसके कि गार्थिया बेवा हो जाएगी और तुम्हें तो मालूम है कि वो पहले ही नन बनने की बेहद शौकीन है। जाहिर है किसी बेवा का नन बन जाना ज्यादा आसान होता है, फिर तुम उसे सिस्टर ही कहकर बुला सकोगे, इमरान ने कहा। तो इस बार दूसरी तरफ से प्रिंस बाडल बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम वाकई शैतान हो, बस तुम्हारे सींग नहीं है, वरना तुम में और शैतान में कोई कमी नहीं है। मुझे गार्थिया ने बताया था कि तुमने उसे नन बनाने का कहा है ताकि उसकी आंख बस सुधर जाए। वो कह रही थी कि तुमने उसे आखिरत के बारे में बड़ा तवील लेक्चर दिया है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे इस इरादे से बाज रखा है, वरना तुम जानते तो हो कि वो किसी कदर जिद्दी वाक़ई हुई है। जो बात उसके जहन में समा जाए वो उसे पूरा करके ही रहती है। इस बार प्रिंस बाडल ने हंसते हुए कहा, फिर बनवा लो उसे नन। इमरान ने कहा, प्लीज इमरान, मजाक को मजाक की हद तक ही रहने दिया करो। तुम्हें मालूम तो है कि गार्थिया अगर नन बन गई तो मेरे लिए सिवाय खुदकुशी के कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके ठीक है, मेरी एक बात सुन लो प्रिंस बाडल, मुझे एक मालूमात चाहिए कि एक जहाज़ जो अभी क्रैश हुआ है मुझे उसके बारे में मालूमात चाहिए। फिर इमरान ने उससे थॉमसन और डेसी के बारे में सारी तफसील बता दी। ओके, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ। इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान साहब, क्या आपको लगता है कि बाडल असल बात मालूम कर लेगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, उसके हाथ बहुत लंबे हैं, कार्बन में इस जैसा और कोई आदमी नहीं है। इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर 1 घंटे बाद इमरान ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दी। यस रेडसन एडवर्टाइजिंग कंपनी। राब्ता कायम होते ही निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, प्रिंस बाडल से बात करो, मैं पाकिस्तान से इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो बाडल बोल रहा हूँ। 4 लम्हों बाद बाडल की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है बाडल? इमरान ने पूछा। ब्लैक ऑक्टोपस का इस क्रैश में कोई हाथ नहीं है, बल्कि वहाँ तो फार्मूला ज़ाय हो जाने पर सफ़े मातम बिछी हुई है। अलबत्ता एक चौंका देने वाली इत्तला मिली है कि ये कार्रवाई किसी नई खुफिया बैनुल-अक़वामी तंजीम ब्लैक थंडर की तरफ से की गई है, बाडल ने कहा। तो इमरान भी इख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? ब्लैक थंडर किस तरह मालूम हुआ? इमरान ने कहा, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से मालूम है? बाडल ने हैरान होते हुए कहा, हाँ काफ़ी हद तक, लेकिन तफसील क्या है? इमरान ने पूछा। तफसील ये है कि प्रांगल पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में एक मशकूक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। इस पर जब तशद्दुद हुआ तो उसने बताया कि ये कार्रवाई बैनुल-अक़वामी तंजीम ब्लैक थंडर ने कराई है। इसके साथ इस आदमी के जिस्म के अंदर धमाका हुआ, जैसे उसके अंदर बम फट पड़ा हो, उसके पर हचे उड़ गए। फिर पुलिस ने उसकी रहायशगाह की तलाशी ली तो वहाँ से एक कार्ड मिला जिस पर सुर्ख स्याही से ब्लैक थंडर लिखा हुआ था। उसके नीचे एक मीनार की तस्वीर थी और मीनार के नीचे 3x के अल्फाज लिखे हुए थे। और बस प्रांगल की पुलिस ने पहले ये नाम नहीं सुना और ना ही ब्लैक ऑक्टोपस को इसके बारे में कुछ मालूम है। बाडल ने तफसील बताते हुए कहा, ये बात तुम्हें किसने बताई है? इमरान ने पूछा। ब्लैक ऑक्टोपस के चीफ ने ये रिपोर्ट सेक्रेटरी दिफा सर एडमिन को दी है। उसके आदमी नार्मन के प्रांगल के पुलिस कमिश्नर से गहरे ताल्लुकात हैं और इस नार्मन को पुलिस कमिश्नर ने ये बात बताई है। अलबत्ता इस नाम को प्रेस से खुफिया रखा गया है, शायद वो पहले इस बारे में तफसीलात हासिल करना चाहते हों। बाडल ने कहा, और ठीक है, अब बात मुकम्मल हो गई। ओके, बेहद शुक्रिया। गार्थिया को मेरा सलाम कह देना, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर आकर उससे एक तवील सांस लिया। ब्लैक थंडर को इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की क्या जरूरत पेश आ गई? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये दहशत गर्दी की कार्रवाई नहीं है ब्लैक ज़ीरो, बल्कि ब्लैक थंडर वो फार्मूला ले उड़ी है और ये कार्रवाई इसीलिए की गई है ताकि कार्बन हुकूमत हमेशा के लिए इसका पीछा छोड़ जाए। इमरान ने कहा, आपका मतलब है कि प्रांगल एयरपोर्ट पर थॉमसन से वो फार्मूला हासिल किया गया होगा? फिर तो थॉमसन उनका आदमी हुआ। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो थॉमसन दरअसल उनका एजेंट था और वो प्रांगल से रूपोश हो गया और उसकी जगह किसी नकली थॉमसन ने ले ली, या फिर एयरपोर्ट पर वो बैग ही तब्दील कर दिया गया और थॉमसन को इसका इल्म ही ना हो सका। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है कि आपका पहला आइडिया दुरुस्त है, वरना ब्लैक थंडर को इल्हाम तो नहीं हो सकता कि ऐसा फार्मूला चोरी करके लाया जा रहा है। अगर उन्हें डॉक्टर मार्क के बारे में इल्म था तो वो वहाँ से ज़्यादा आसानी से फार्मूला हासिल कर सकते थे। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। बहरहाल अब ये बात तो तय हो गई है कि फार्मूला अब कार्बन की बजाय ब्लैक थंडर की तहवील में चला गया है। इमरान ने कहा और इसके साथ उसने फ़ोन कर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PA टू सेक्रेटरी वजारत हार्जा राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सर सुल्तान के PA की आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस सर सुल्तान से बात कराओ। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, ये सुल्तान बोल रहा हूँ सर। 4 लम्हों बाद सर सुल्तान की मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। आपको इमरान ने हिटविकल मिसाइल सिस्टम के बारे में बताया था जो पाकिस्तान और शुगरान का मुश्तरका प्रोजेक्ट था और जिसे शुगरान में मुकम्मल किया जा रहा था। इमरान ने उसी तरह मखसूस लहजे में कहा, यह सर वो तो इंतहाई अहम तरीन प्रोजेक्ट था। मैंने सेक्रेटरी दिफा से बात की थी, उन्होंने बताया था कि इस प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने इंतहाई कसीर सरमाया भी खर्च किया था और अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता तो पाकिस्तान का दिफा इंतहाई मौसर हो सकता था। सर सुल्तान ने इसी तरह मोतबाना लहजे में कहा, ये कार्बन डॉक्टर की इजाद था और इमरान ने इस फार्मूले पर डॉक्टर का सुराग लगाया था, लेकिन फार्मूले तक पहुंचने से पहले एक बैनुल-अक़वामी खुफिया तंजीम ने डॉक्टर मार्क को हलाक करके वो फार्मूला उड़ा लिया है। अब फौरी तौर पर सेक्रेटरी दिफा, सदर मुमलिकत और इस मिसाइल सिस्टम से मुतल्लिका दूसरे अफराद के साथ साथ शुगरान के साइंसदान और वहाँ की हुकूमत से राब्ता करें और फिर मुझे रिपोर्ट दें कि क्या इस फार्मूले का इस खुफिया तंजीम से हसूल पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है या नहीं। हो सकता है कि पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन या साइंसदानों ने इस दौरान इससे मिलते जुलते किसी सिस्टम पर काम शुरू कर दिया हो और अब इसकी अच्छी ज़रूरत ना रही हो। इमरान ने कहा, ये सर, मैं अभी राब्ता करके आपको रिपोर्ट देता हूँ सर। सर सुल्तान ने मोतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा और इमरान ने रिसीवर रख दिया कि आप इस सिलसिले में मशकूक हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा,
یہ بہرحال ایک اینٹی میزائل سسٹم ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس جیسا اور سسٹم زیر تحقیق ہو اور ہم ہاں اس کے پیچھے پھرتے رہیں۔ موجودہ سائنس کی دور میں انتہائی تیز رفتار ایجادات کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جب اسے حاصل کر کے واپس لائیں تو ہمارے سائنسدان کہیں کہ آپ کیا گدا گاڑی اٹھا لائے ہیں، اب تو جیٹ جہازوں کا دور ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو ہنس پڑا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ جس طرح بلیک تھنڈر نے آپ کو اس لسٹ میں رکھا ہوا ہے جس میں آپ کی ہلاکت کا حکم نہیں ہے، اس طرح آپ بھی شاید بلیک تھنڈر کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، نرم سخت گوشے تو اس وقت ہوں گے جب دل ہوگا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ جس فارمولے کو بلیک تھنڈر جیسی تنظیم نے حاصل کرنا ضروری سمجھا ہو، آپ اس فارمولے کی کارکردگی کے بارے میں مشکوک ہیں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تمہاری بات درست ہے، میرے ذہن میں واقعی یہ پہلو نہیں آیا تھا۔ گڈ شو، تمہاری بات واقعی درست ہے۔ بلیک تھنڈر جیسی تنظیم نے اگر اس فارمولے کو حاصل کیا ہے تو یقیناً یہ فارمولہ آج کا نہیں، اگلی صدی کا فارمولہ ہوگا۔ گڈ، اب تو اسے ہر صورت میں حاصل کرنا ہوگا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو کا چہرہ اس طرح چمک اٹھا جیسے اس نے کوئی بڑی سلطنت فتح کر لی ہو۔ لیکن عمران صاحب، بلیک تھنڈر کے لیے تو سنا ہے کہ بے شمار سیکشن ہیں اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، اور آج تک آپ بھی اس کے ہیڈ کوارٹر کا سراغ لگانے کی کوشش نہیں کی، اور یہ فارمولہ نہ جانے کہاں پہنچا دیا گیا ہو۔ اسی صورت میں آپ ایسی لائن آف ایکشن کیسے بنائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، ظاہر ہے پرانگل جا کر وہاں سے کوئی کلو تلاش کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ لیکن کیا ایک کارڈ ملنے سے یہ بات حتمی طور پر طے ہو جاتی ہے کہ یہ کام واقعی بلیک تھنڈر کا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔